ہاں بولیے. ہلو عبدالعزیز صاحب. ہاں بولیے. بتائیے فون کیوں کر دیا آپ نے؟ کیا چیز؟ ارے فون کیوں کر دیا؟ اتنے ٹائم میسج ضروری آنا تھا تو میرا نیٹ رک گیا. کوئی بات نہیں بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں ساری باتیں ہٹا کے، نہ آپ صحیح نہ ہم صحیح، ساری باتیں سائڈ ہٹا دیجیے، ٹھیک ہے؟ 2 منٹ کے لیے سکون سے سوچئے کہ اگر آپ کا ماننا یہ ایک بات سنیے، میں آپ کو آج کے وہ بتاتا ہوں. ایک وصول آپ رکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ جسے آپ کو جب بھی موقع ملے مجھے آپ اس سے پہلے ایک میسج کر دیجیے کہ اصلاحی گفتگو ہوگی اس موضوع پہ، تاکہ انسان آپ بھی کچھ مطلب وہ کر لیں، ہم بھی کچھ وہ کر لیں. اس میں اسی ادلہ اربع کے بیچ میں گفتگو ہوگی تاکہ لوگ بھی سمجھیں گے حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے؟ میں آپ سے یہ بات آپ سے ایک سال پہلے کہی تھی یہ بات، تو آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا. ہمیں کوئی دیکھیے بھائی، اس وقت ہو رہا ہے میرے بھائی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں زیادہ لمبی بات بھائی میں ایک دم نہیں کروں گا. صرف اتنا نارملی آپ سے پوچھوں گا کہ تمام حنفیوں کا ماننا یہ کہ جو تراویح ہے وہ الگ ہے 20 رکعت، جو تہجد ہے وہ الگ ہے 8 رکعت، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دونوں نمازیں الگ الگ ہیں. تو بھائی ہم آپ کو اگلے سال تک کا ٹائم دے رہے ہیں رمضان میں، انشاءاللہ اگر میرے بھائی زندہ رہے آپ اور ہم دونوں لوگ، تو اگلے سال آپ ہم کو اس کا جواب آپ دے دینا کہ اگر جو تراویح ہے 20 رکعت وہ الگ ہے اور 8 رکعت جو تہجد ہے وہ الگ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی رمضان کی رات تھی جس میں آپ نے 20 رکعت عشاء کے بعد پڑھا ہو، پھر آپ سو گئے ہوں، پھر سو کے اٹھے ہوں، پھر آپ نے 8 رکعت تہجد پڑھی ہو؟ بس اس کا جواب دے دیجیے گا تاکہ پھر سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. پھر ہمیں بھی مجبوری میں ماننا پڑے گا کہ نہیں بھائی تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے. ٹھیک ہے؟ یہ میں اگلے سال تک کا آپ کو انشاءاللہ ٹائم دے رہا ہوں، آپ آرام سے. ہاں تو تو میں بھی آپ کو اگلے سال تک نہیں، جب تک آپ زندہ رہیں گے تب تک میں آپ کو مطلب ٹائم دے رہا ہوں. نہیں ہم سے تو ابھی جواب ہمیں اتنا ٹائم نہیں چاہیے، بتائیے فٹافٹ. ابھی ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں. آپ بھی ثابت کر دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت، ٹھیک ہے، پورے رمضان تراویح 8 رکعت پڑھائی ہو. تو یہ میرا دعویٰ ہی نہیں ہے نا باجماعت، جب اللہ کے نبی نے خود بتا دیا 3 رات اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی، اور چوتھی رات کو آپ اس لیے نہیں آئے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض نہ کر دے، تو 3 دن آپ نے پڑھائی. اب ہم چاہے تو پورے 30 دن پڑھیں اور چاہے تو پورے سال پڑھیں. بھائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، بھائی اگر اللہ کے نبی نے کھانا کھانے سے پہلے ایک بار اگر کہا ہو نا بسم اللہ، تو یہ ہماری ساری زندگی کے لیے سنت بن جائے گی. تو آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ نہیں کیا اللہ کے نبی نہیں. ابھی ہم بھی آپ سے کہیں کہ نہیں آپ ہم کو دکھائیے کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی ایسا کوئی جوتے پہن کر بھی نماز پڑھی، اس سے آپ کیا مراد لیں گے؟ اس سے یہ مراد بھائی جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے. ہاں تو آپ لوگ کیوں نہیں جوتے پہن کے نماز پڑھتے؟ ارے تو وہ کہاں کی سنت ہے وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. زمین اگر میرے پتھریلی ہے کنکڑ والی ہے تو وہاں پر وہ چیز نہیں ہے. یہ چیز آپ مسجدوں میں قالین ہے تو قالین کو کون جائے گا جوتا پہننے؟ ہاں جوتا اگر آپ کے صاف ہے تو قالین کا ذکر نہیں ہے، قالین کا ذکر نہیں ہے وہاں پہ. پوری حدیث پڑھ لیجیے بھائی، آپ نے حدیث پڑھی؟ پوری حدیث پڑھا ہوں میں، آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دوں. اس میں وہاں پر ذکر ہے ہی نہیں کہ قالین. سنائیے. ہاں تو اگر میں نے آپ کو یہ حدیث شریف سنا دیا تو کیا کریں گے؟ میں توبہ کر لوں گا، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے آپ کے بریلوی جو عالم ہیں انہوں نے خود کہا ہے بیان میں کہ پہلے کی جو مسجد تھی وہاں پہ پکے وہ جو پتھر تھے اور سنگے مرمر تھے، ٹائلس تھے، یہ سب کچھ نہیں لگے ہمارے لیے. تو آپ لوگوں کی ریت کی زمین تھی، آپ لوگوں کے لیے حجت کیا ہے؟ جو چیز حدیث میں ہے آپ لوگوں کے نزدیک کیا حجت ہے؟ جو چیز ہے. ارے جو چیز نہیں کیفیت بھی تو دیکھیں گے نا کہ کہاں کی چیز ہے وہ. تو وہاں پہ آپ استدلال کریں گے. اللہ کے نبی نے میرے بھائی رات کو نماز ادا کی تو رات اس کی بھی شرط ہے نا، اب اس کو دل میں تھوڑی سا قیاس کر کے پڑھ لیں گے. جب تک آپ زندہ ہیں میں بھی آپ کو ٹائم دے رہا ہوں کہ نبی نہیں ہم نے جواب آپ کو دے دیا، آپ ہمارے سوال کا جواب دیجیے کہ تراویح تہجد اللہ کے نبی نے ایک رات میں کب ادا کی؟ تو اچھا یہ بتائیے، اس کا مطلب ہم لوگ تراویح، ارے ہم ہار مان لیں گے نا. دیکھیے ہم چلیے دیکھیے آپ لوگ ہم کو مانتے ہو کہ ہم جاہل ہیں، گمراہ ہیں، گستاخ ہیں، چلیے ٹھیک ہے بحث کے طور پہ مان لیا. ہم تو کہہ رہے سیدھے آپ ایک دلیل ہمارے منہ پہ ماریے
ताकि फौरन हम तौबा कर लें। मानते हैं आप? एक हदीस बता दीजिए जिसमें अल्लाह के, और हमको हदीस भी ना पढ़ के बताइए, खाली हदीस का हवाला ही दे दीजिए। अरे हवाला हदीस पढ़ने के लायक है ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे हदीस। इसके लिए इब्ने तैमिया को मानते हैं? खुद पढ़ के बता दीजिए। इब्ने तैमिया को मानते हैं आप? इब्ने तैमिया जाए साइड में, आला हजरत जाए साइड में, अशरफ अली थानवी साइड में। बात हुई ये बात हदीस पे होगी, हदीस पे तरावी पढ़ाई और उनमें से समझे रकाते तरावी पढ़ाई, उनमें से किसी ने भी उसका इनकार नहीं किया। फतावा इब्ने तैमिया जिल्द नंबर 23 नंबर 112। फतावा इब्ने तैमिया से हमारा कोई लेना देना नहीं, आप उसको घर में सजा के रखिए। बोलिए इब्ने तैमिया कुत्ता था। मतलब ये आपका उसूल है कि अगर किसी की बात हम ना माने तो ये बोलना पड़ेगा कि वो कुत्ता था। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तो भाई जो शागिर्द थे वो अपनी मोहत्ता मोहम्मद में कि जो तरावी है वो जो सुन्नत उसकी तादाद है वो है 11 रकात। अब आप बोलिए इमाम मोहम्मद कुत्ता था, चलिए बोलिए। अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ लिखा है ये? अरे मोहत्ता मोहम्मद में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द तरावी जो है इमाम मोहम्मद 8 रकात नहीं बन सकती है। मोहत्ता मोहम्मद में कहते हैं कि जो तरावी है वो सुन्नत से जो उसकी तादाद साबित है वो है 11 रकात। अब आप उनको कुत्ता बोलिए, चलिए। आपका उसूल है ना कि आपने बात कही ना, आपने ये बात कही ना, तो वहाँ पे लफ्ज़ तरावी नहीं है जनाब, लफ्ज़ तरावी है मेरे भाई। हम जो बोलते हैं ना वो हवा में आपकी तरफ फायरिंग नहीं करते हैं। वो पहले की दलील आप दे रहे हैं, कब की दलील दे रहे हैं ये पहले बताएंगे आप। कितने हनफी आलिमों का कौल है, अल्लामा ऐनी हो गए, ठीक है, मुल्ला अली कारी हनफी हो गए, फतावा काजी खान उठा के देख लीजिए, ठीक है, मोहत्ता मोहम्मद देख लीजिए, कहाँ कहाँ आप भागोगे? हनफी आलिमों के सबको कुत्ता कहते रहोगे? इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मानते हो? अरे भाई आप तो ऐसा पूछते हो, उनको मानते हो, उनको हम कह रहे हैं भाई हम सिर्फ हदीस को मानते हैं। उनकी आप आप हमें ऐसी हदीस बता दीजिए जिसमें ये आया हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में ईशा के फौरन बाद 20 रकात तरावी पढ़ी, फिर आप सो गए, फिर सो के उठ के 8 रकात तहज्जुद पढ़ी। ऐसी हदीस बता दीजिए, हम फौरन तौबा कर लेंगे। बस आप एक ऐसी हदीस दे दीजिए ना कि रमजान में, या आपने वहाँ पर लफ्ज़ गैर रमजान का भी जिक्र है, रमजान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 क़यामुल लैल के बारे में, क़यामुल लैल। अरे तो आप लोग अनहा बयान करती हैं कि रमजान हो चाहे कोई और महीना, यानी कि पूरा साल अल्लाह के नबी गैर रमजान में भी तरावी पढ़ते हैं आप लोग? गैर रमजान में तरावी क्यों नहीं कहते? हाँ पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। पढ़ते तो कैसे क्यों बस नहीं? तो ऐसे कैसे? आप जैसे मान लीजिए आपका नाम, अरे भाई आप मेरे जोहर पढ़ते हैं ना, अब जोहर अगर मेरे भाई सफर में आप पढ़ेंगे तो वो हो जाएगी, कसर हो जाएगी ना। तो सफर में पढ़ेंगे ना कसर, या नहीं पूरे साल यहाँ पर जब आप सफर करेंगे भाई क़यामुल लैल की जो कैफियत है उसका नाम है तरावी। इसी तरीके से जो जोहर की नमाज है, अगर सफर में आप उसको पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं कसर, तो वो नमाज तो जोहर ही की रहेगी ना। चले नहीं रहा हूँ कि आप लुगत से भी नहीं साबित कर सकते हैं। अरे लुगत तेल लगाने ना किसी लुगत से तो आप मेरे भाई कुंडे को नहीं साबित कर पाए आज तक कि कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं। क्या कुंडे को अरबी में क्या करना है? सिंपल सवाल पूछा, उसका जवाब वो भी तो मैं भी का टाइम दे रहे हैं, कोई फौरन अभी मैं भी आपको पूरी जिंदगी जब तक आपकी जिंदगी आपको जवाब रहेगी, आप पहले हदीस बताइए ना जिसमें ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हो कि बाजमात पूरे रमजान आप लोग तरावी पढ़िए। जब अल्लाह के नबी ने खुद मेरे भाई जमात से पढ़ा के दिखा दी तो वो हम सारी जिंदगी पढ़ सकते हैं जमात से। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्यों 20 रकात का इजाद किया? तो 20 रकात नहीं की ना, यही तो हनफियों का झूठ है ना। यही तो आप मोहत्ता इमाम मालिक में दो हदीसें आती हैं, एक आती है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 रकात पढ़ाने को बोला, जो है और उसी मोहत्ता इमाम मालिक में आती है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को 11 रकात तरावी पढ़ाने के लिए बोला। दोनों हदीस आती है मोहत्ता इमाम मालिक कहते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 20 रकात तरावी के कायल वो खुद है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद, दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात ये कौल है जी। अब्दुल अजीज कादरी साहब जी भाई, मोहत्ता इमाम मालिक में इमाम मालिक दोनों हदीस को लेके आए, वो 20 रकात वाली भी लाए हैं और 8 रकात वाली भी लाए हैं, लेकिन
अच्छा ये बताइए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 20 रकात वाली उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मंसूब है, उसको ज़ईफ बोल दिया और वो वाकई में ज़ईफ है। इसको हनफी आलिमों ने भी ज़ईफ कहा है, लेकिन मुअत्ता इमाम मालिक में जो सही हदीस है वो आती है अशरता रकात वाली, यानी कि 11 रकात वाली, 8 रकात 3 रकात वाली। तो आप उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? मतलब आपकी मिसाल तो ऐसी हो गई कि 2 सेब आपको देंगे, जो ताजा सेब है, अच्छा सेब है वो नहीं खाओगे, जो सड़ा गला सेब है, कीड़े पड़े हुए सेब है वो आप खा लोगे। कितने बड़े पागल आदमी हो यार। आप बताइए, ज़ईफ उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाद किया, उसको ज़ईफ आप कह रहे हैं ना? अगले साल तक का आपको टाइम दे रहा हूँ, 20 रकात की एक सही हदीस पेश कर दीजिए। अरे तो अच्छा, सही हदीस पेश करूँ आपको? हाँ, तो ज़ईफ हदीस तो मेरे भाई 28 हैं, 28 ज़ईफ हदीसें आती हैं 20 रकात तरावी की। तो ये बताइए, जब चाहे तब मैं खुद पेश कर दूंगा 20 रकात तरावी पे। 28 मेरे भाई ज़ईफ हदीस हैं, जिसके मेरे भाई सनद पे कलाम है और वो पक्की ज़ईफ है। नहीं बताइए, ज़ईफ हदीस किसे कहते हैं? ज़ईफ हदीस हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सनद में खोट हो। अच्छा, तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जो कह रहे हैं, ज़ईफ हदीस का माना कुल मिला के ये होता है जो बात सनद अल्लाह के नबी तक पहुँचे ही ना। जी, उसकी जो सनद हो उसमें खोट हो, लोचा चल रहा हो। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात में किसी मुहद्दिसीन ने या किसी ने भी नहीं कहा है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात नहीं मानी जाएगी। भैया वो कभी से रावी पड़े हुए हैं कि एक रावी कहता है कि मैंने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, आपने लोगों को 20 रकात तरावी पे जमा किया, और जब उस रावी के बारे में पता चलता है कि वो कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कुनियत क्या थी, तो पता चलता है कि वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस दुनिया से जाने के 2 साल बाद वो खुद पैदा हुआ। अब बताइए, जो 2 साल बाद पैदा हो रहा है वो कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उमर ने लोगों को 20 रकात तरावी का जमा किया। इस तरीके से मेरे भाई ज़ईफ रावियों की हदीसें आप पेश करते हो। आप नाम बताइए, उनका नाम बताइए। कितने रावी हैं भाई, पूरा चार्ट आपको बना के भेज दूं? नहीं, एक नाम बताइए। तो आप हदीस को पेश कीजिए तभी उसके बताएंगे रावी को। आप पहले सनद बताइए। चलिए, यजीद बिन हारून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बता दीजिए। उन्होंने भी ये 20 रकात तरावी के कायल हैं। चलिए उनके बारे में बता दीजिए। देखिए, कायल तो हम भी हैं, फिर वही बात कायल है तो फिर अपना मसला ये ना, 20 रकात पढ़िए ना। 20 रकात पढ़ लेता है तो जायज है, कोई 24 पढ़ ले, 40 पढ़ ले, रात भर पढ़े, जायज है। लेकिन इसको ये ना कहे कि 8 रकात बिदअत है और 20 रकात सुन्नत है। अगर कोई ये कहेगा तो फिर 8 रकात तरावी सुन्नत से साबित नहीं है, 20 रकात ही सुन्नत से गोया आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया। गोया आपने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात नहीं बता दी, खाली साबित ही है ना, ज़ईफ हदीस है ना सारी। हम आपको यजीद बिन हारून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कौल आप जो कह रहे हैं कि इनके बारे में आप बता दीजिए, उनमें ये रावी है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जमाने में उबय बिन काब को, ठीक है, रमजान में 8 रकात और वित्र पढ़ाने के लिए आपने इकट्ठा किया। ये बात आती है मुसनद अबू याला और इसका हदीस का नंबर है 1801। ये सही हदीस है। इसकी सनद में एक भी रावी ना तो कमजोर है, ना ज़ईफ है, ना कज़्ज़ाब है। आप जाके चेक कर लीजिए। तो हम भी तो कह रहे हैं ये बात कि हजरत आपने जो बात बताया हजरत यजीद बिन हारून के बारे में, तो आप बताइए ना। उसका हदीस का नंबर है 1070। उसमें आता है कि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में जो रात की नमाज है वो कैसे पढ़ाई, उसके बारे में बताते हैं कि 8 रकात हमें पढ़ाई और 3 रकात आलम वित्र पढ़ाई, यानी कि 11 रकात। उसका मतलब उसकी वो क्या थी, मिकदार क्या थी? मतलब वो कैसे पढ़ाते थे, उसका कुछ वजाहत करेंगे? उसकी लंबाई का हाल ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में इतनी लंबी नमाज पढ़ाई कि खूब लंबे लंबे कयाम, लंबे लंबे रुकूल और एकदम लंबे लंबे सजदे और लंबे लंबे कायदे। ईशा के फौरन बाद से लेके जो पढ़ाना चालू किया है तो वो 8 रकात इतनी लंबी हुई कि सहाबी को खौफ हुआ कि कहीं हमारा जो सहर है सहरी ना छूट जाए,
यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा के फौरन बाद से पढ़ाना चालू की और सहरी के वक्त तक पढ़ाते रहे। तो उस दिन अल्लाह के नबी ने जो तहज्जुद है वो कब पढ़ी मेरे लाल? इससे साबित होता है कि तरावी तहज्जुद दोनों एक ही नमाज है। अरे मेरे लाल, तो वही तो हम भी कह रहे हैं मेरे लाल। तो इस भाई देखिए, अब आप देखिए, अब आप मेरे जिद्दी कर रहे हैं, ठीक है, जिद्दी बच्चे बन गए हैं। मतलब अब आपने ये ठान लिया कि हम मानेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वही बात, मतलब आपकी मिसाल तो ऐसी है कि 2 + 2 4 होता है, वो आप नहीं मानेंगे, लेकिन 2 + 2 5 है, वो आप मेरे भाई पक्का मान लोगे। ये तो आप मानोगे ना, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो नहीं। देखिए इसीलिए मैंने कहा था बंदे आप ऐसे पढ़े लिखे होने से तो अच्छा है कि भैया हम वाकई जाहिल। चलो कोई बात नहीं। अरे तो आप बात ही नहीं करते, इसीलिए तो कोई फायदा ही होता। इतनी देर से आपने बहस की, क्या कुछ हल निकला? तो हल तब निकलेगा ना जब आप मेरे भाई अल्लाह के नबी की बात को मानेंगे। हल तब निकलेगा जब आपके पास इल्मी सलाहियत होगी। भाई हम सही बुखारी की हदीस पेश कर रहे हैं जिसकी सनद में कोई हम लोग का कोई आपस का इख्तिलाफ भी नहीं है। आप भी मानते हो सही हदीस है, हम भी मानते हैं सही हदीस है। एक हदीस में आप बहस कभी मुझसे, जैसे एक हदीस में बहस करना हो ना, उसके लिए बहुत वक्त चाहिए। अच्छा एक मेरे भाई सिंपल सी हदीस है जो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, ठीक है। अब आपका बार बार सवाल होता है कि आप लोग पूरा महीना तरावी क्यों पढ़ते हो, पूरा महीना क्यों पढ़ते हो, पूरे साल क्यों नहीं पढ़ते हो, ये है वो है, ठीक है। तो ये हदीस आती है बुखारी शरीफ में और इसका हदीस का नंबर है 2012। अब इसमें क्या आता है, छोटी सी हदीस एकदम गौर से उसको मेरे भाई सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के आखिरी अशरे में, यानी कि जो आखिर के होते हैं 10 दिन, उसमें सहाबा को 3 रातों तक उनको इकट्ठा करके तरावी पढ़ाई, यानी कि जमात के साथ पढ़ाई। और चौथी रात को खूब एकदम भीड़ हो गई मस्जिद में, लेकिन अल्लाह के नबी अपने कमरे से बाहर नहीं आए। फिर आप जब आए तो आपने फरमाया कि मुझे इसके बारे में पता था कि तुम लोग आए हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे खौफ हुआ कहीं अल्लाह ताला तुम पर ये फर्ज ना कर दे। अब देखिए, उस वक्त अल्लाह के नबी को डर था कि हो सकता है अल्लाह ताला इसको फर्ज कर दे, लेकिन तो ये बताइए, सुन लीजिए भाई, एक लाइन सुन लीजिए फिर आप आराम से बोलिएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जब सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 3 जब उसको नाजिल कर दिया कि आज हमने तुम्हारा जो दीन है उसको कंप्लीट कर दिया, अब दीन कंप्लीट हो गया है, अब हम चाहे पूरा साल भी क्यों ना मेरे भाई नमाज पढ़े, अब अल्लाह ताला इसको ना तो फर्ज करेगा ना इसको कुछ करेगा, क्योंकि अब दिन कंप्लीट हो गया है। पहले अल्लाह के नबी को डर था, इसलिए अल्लाह के नबी ने इसको पढ़ाने से इनकार कर दिया और खाली 3 दिन पढ़ाया। लेकिन अब तो कोई डर नहीं है ना, अब हम पूरा महीना पढ़ सकते हैं, पूरा साल पढ़ सकते हैं। 3 दिन में खत्म कुरान हो गया था क्या? 3 दिन जो आपने 3 दिन की बात कही है, तो आप लोग जैसे कुरान की खत्म कुरान आपके नजदीक क्या है, सुन्नत है कि नहीं है? नहीं, खत्म कुरान हम लोग के वहाँ बेहतर है, ना ये फर्ज है ना सुन्नत बेहतर है। अच्छा, ना फर्ज है ना सुन्नत है। अच्छा। अगर कोई तरावी में कयामुल लैल में कुरान भाई अगर वो पूरा कंप्लीट कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज है, बेहतर है, लेकिन ये नहीं है कि ये फर्ज है। ये कहाँ से साबित है, ये कहाँ से साबित है बेहतर? आपने ये बेहतर कहाँ से साबित है? अरे भाई मुस्तहब है ना, अल्लाह के नबी रमजान में जो पूरा कुरान था उसको खत्म करते थे ना कयाम में। हाँ, तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं ना 3 दिन में कुरान खत्म, वहाँ पे लिखा है कि 3 दिन में खत्म कुरान हो गया था। 3 दिन का कौन दावा कर रहा है भाई? मतलब खुद ही अपने आप से सवाल पैदा कर लो तो क्या यार? नहीं, तो फिर आप बताइए, जब आप कह रहे हैं तो आप लोग जो खत्म कुरान ये जो हदीस हमने बताई आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं, उससे भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस हदीस में कहीं ये नहीं है कि 3 रात में ही सहाबा को पूरा कुरान पढ़ा दिया, ये इस हदीस में ही नहीं। वही तो हम भी कह रहे हैं कि आप लोग खत्म कुरान क्यों करते हैं जब जिक्र नहीं है। अरे भाई खत्म कुरान कौन कर रहा है यार? अजीब मतलब बैलो यार, तुम्हें हदीस समझ में नहीं आती क्या? इसका मतलब आप लोग कुरान खत्म नहीं करते, आप लोग आधी अधूरी कुरान पढ़ते हैं। अरे कुरान खत्म जो खत्म करे तो आप इस हदीस में अल्फाज है क्या? तो वही तो हम भी कह रहे हैं, हदीस में अल्फाज नहीं तो आप दिखाई, आप लोग खत्म कुरान क्यों करते हैं? खत्म कुरान का तुमने नाम ही नहीं लिया ना मेरे भाई, तुम खुद ही तो बीच में कहीं की सर कहीं का काम जोड़ रहे हो। तो वहाँ तो क्यों करते हो, फिर खत्म कुरान क्यों पढ़ते हो? आपका सवाल है क्यों करते हैं, तो इसका जवाब दीजिए क्यों करते हैं। क्योंकि जो रमजान का महीना है वो जो महीना है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का महीना है,
उठते बैठते सोते जागते सुबह शाम जब टाइम मिले नमाज में कयाम में हमें सिर्फ कुरान ही कुरान पढ़ना है, कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत करना है, कुरान को समझना है और कुरान पे अमल करना है। ये कुरान का महीना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को खत्म करते थे रातों के कयाम के जरिए। तो जितना नाजिल होता था कुरान पूरा साल, वो अल्लाह के नबी रमजान में उसको दोहराते थे कयाम में। ये चीज आपको भी पता होना चाहिए। तो ये चीज करना ये बेहतर और मुस्तहब है। अगर कोई इमाम हाफिज कुरान है तो उसको चाहिए कि पूरे महीने में कम से कम एक कुरान तो भाई वो दोहराए खत्म करे। बात सुनेंगे आप? देखिए पूरा कुरान शरीफ 23 बरस में नाजिल हुआ ना पूरा, लेकिन हर साल आता था ना रमजान। अल्लाह के नबी हर साल मेरे को जितना नाजिल होता था उतना तो दोहराते थे ना, यानी कि उतना तो खत्म करते थे ना। हदीस मुबारक है, ये जो हदीस मुबारक है आप सब समझ रहे हो, आप कहीं ना कहीं दिल के कोने में जानते हो कि अफू खान जो बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन मानोगे अफू खान गलत बोल रहा है, अफू खान गलत बोल रहा है, इसलिए गलत बोल रहा है। उतारोगे तभी तो समझ में आएगी ना हक बात। पहले आप भी उतारे। और अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग, आपके उलमा जो ना, आपने कहा उलमा छोड़िए भाई, उलमा ने तो बहुत मेरे भाई क्या क्या कांड किए वो आपको पता है। तो आपके जो लोग कुरान भाई हम लोग उलमा ने पहले क्या क्या कांड किए हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो उलमा को हटा दीजिए। बात हो रही है नबी। उलमा गलत है? नबी उलमा गलत है? हाँ मेरे भाई बरेलवियों के उलमा तो है गलत ना। अरे देखिए उलमा का नाम ले रहा हूँ। हाँ हमारे भी चंद उलमा हो सकते हैं जो मेरे भाई गलत हो, तो हम किसी की मुकल्लिद थोड़ी ना है। आपके सभी उलमा गलत है, एक भी आलिम आपके नाम से सारे उलमा अगर मेरे भाई गलत होते तो दीन हम तक क्या मेरे भाई हवा में पहुंच जाता? तो दीन आपके पास पहुंचा कहाँ है? आपके पास दीन दीन अभी नहीं पहुंचे बरेलवियों के पास है ना। हाँ वो आला हज़रत की दीन पे चल रहे तो उनको इस्लाम से क्या लेना देना। अरे यार बताइए, इसमें आप लोग खत्म कुरान करते हैं तो सुन्नत में आप लोग खत्म कुरान करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे हर साल रमजान में। जितना कुरान पूरे साल भाई वो अल्लाह के नबी के ऊपर नाज़िल होता था, आप उस साल उसको रमजान में दोहराते थे। अरे सुनिए, ये हदीस मुबारका जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये हदीस मुबारका अपने मसले को साबित करने के लिए नबी की हदीस में भी कील काल करना है, कील काल कर रहे हो, तुम कील काल कर रहे हो। बताओ। अच्छा ये बताइए, चलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, अल्लाह के नबी हर साल रमजान में कुरान को दोहराते थे कि नहीं करते थे? आप बताइए। पूरा कुरान शरीफ कब मुकम्मल हुआ था? 23 साल में ना, तो पूरा। अरे भाई वो बात की बात है, पहले आप ये बताइए दोहराते थे कि नहीं? जितना नाजिल हुआ था उतना दोहराते थे। हाँ जितना नाजिल हुआ था उतना ना। तो अब मेरे भाई हमारे टाइम पे पूरा कुरान मेरे भाई नाजिल हो गया, इसलिए हम पूरा दोहराते हैं, बात खत्म। अच्छा कहाँ अब मुँह काला हो गया भाई तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, आप कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब्दुल अजीज सीपीएस का जैसा मुँह काला हुआ है कि कोई तरफ से आप लोग खुद देख लीजिए बरेलवी कितने जाहिल होते हैं, वाज़ेह हदीस आने के बावजूद भी इनकार कर देते हैं। इनका मसला तो बस ऐसा है कि मीठा मीठा हपप और कड़वा कड़वा तू।